Namaskar. A very warm welcome to the august audience who have spared their valuable time to be with us for this special lecture on universal human values. We are particularly privileged to have with us Dr. Rajneesh Arora, who's the chairman of the National Coordination Committee for Induction Program at AICTE. Also, our Honorable Vice Chancellor, Professor Renu Vig, Dean College Development Council, Professor Sanjay Kaushik, and Registrar, Punjab University, Professor Yajwinder Pal Verma. I would now request Professor Vig to present a bouquet to Dr. Rajneesh Arora. I would also request Vice Chancellor ma'am for the welcome address. Professor Rajneesh Arora, Professor Y.P. Verma, Professor Sanjay Kaushik, faculty, students, and other members who are here to participate in this interaction which Professor Rajneesh Arora is going to conduct on a minor degree program, Universal Human Values, that has been developed under his leadership for AICT. And UGC is also contemplating having such a minor degree for universities also. Whether we adopt this as a minor degree for technical courses or as, electives in the basket of value-added courses that we are going to have once we go for implementation of NEP 2020, that we have to see once we are, introduced to this minor degree, contents of this minor degree program developed by AICT. We have been working on implementation of NEP 2020 for a long time now, and it talks about holistic education, where we not only have to offer courses relevant to a particular degree program that the student has undertaken, but besides that we have to have value-added courses, skill enhancement courses, ability enhancement courses. And in value-added courses, we have been talking about professional ethics, publication ethics, green environment, and so many other things. But then, the horizon is really very broad. And when the students enter the higher educational institutions, we tell them that you start building your CV from day one. Because the objective of getting education is that we want that the students should be employable once the education is complete. So when we talk about building the CV, then basically we are referring to the skills that the student is going to gain while he is doing his UG or PG or PhD or whatever he is here for. And it is very important to have skills which make you employable, only then you will get a job, right? But then, I always tell my students that we are building two CVs. One CV is of professional skills that we are gaining while we are studying, and the other CV we are making with our, karma. Whatever we do, it is getting added somewhere in our stock register. And although we are not maintaining that CV with us, but someone somewhere is maintaining that CV. And I think that CV maybe we carry forward also, or when we come to this life, we bring it with us. Although this theory is not proven, but there are many stories where we see that this definitely exists.
You know, when Maharaj Dashrath, when he decided that Bhagwan Ram is to be, you know, made the king of Ayodhya, then everybody in Ayodhya was very happy, but in Devlok everybody was very sad. So Narad Muni तो पता ही है, so he was asking everyone कि अयोध्या में तो सब इतने खुश हैं कि भगवान राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है, और हम यहाँ सब इतने दुखी क्यों हैं? तो देवताओं ने कहा कि अगर भगवान राम का राज्य अभिषेक हो गया तो जिस पर्पस के लिए वो धरती पे गए हैं उस पर्पस का क्या होगा? उनका धरती पे जाने का पर्पस तो है कि जो ये हैं राक्षस हैं या जो ये डेमन्स हैं हु टॉर्चर ऋषि मुनीज, जो जंगलों में तपस्या करते हैं, तो उनका विनाश कैसे होगा? अगर भगवान राम राजा बन जाएंगे तो वो तो अयोध्या में अपना मस्त रहेंगे और जंगलों में जो कुछ हो रहा है दैट विल कंटिन्यू टू हैपन, तो क्या करें? तो फिर जो देवता लोग थे उन्होंने माँ सरस्वती से रिक्वेस्ट की, यू नो, दैट यू डू समथिंग, एंड माँ सरस्वती सेड व्हाट कैन आई डू? एंड दे सेड, यू नो, बुद्धि तो इंसानों की आप चलाते हो, सो यू डू समथिंग, कुछ ऐसे बुद्धि चलाओ कि यू नो ये ना हो. So then Ma Saraswati said, okay, let me think what to do, and then, you know, she changed the thinking of mantra. तो वो कहते हैं ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि ऐसे चेंज करी मंत्रा की कि everything changed, and भगवान राम was you know sent to jungle for 14 years, and जो महाराज दशरथ थे वो वियोग में, पुत्र वियोग में चले गए. जब जाने लगे तो याद आया जब गलती से उन्होंने श्रवण को तीर मारा और श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में जा रहे हैं एक दिन ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा. सो यू नो उसी जन्म में पे बैक हो गया. बट यू नो देयर आर पीपल लाइक यू नो स्वामी विवेकानंद, when he was a young boy his parents wanted him to get married, but he didn't want to get married. And as a child, when he used to sleep, he used to see that light and he used to feel the presence of God. तो कुछ तो संस्कार पुराने जन्म के उनके साथ थे जिसकी वजह से you know he was like that. तो कुछ तो है जो ये हमारे जो कर्म हैं इसका जो स्टॉक रजिस्टर है ना, this we carry forward with us not in this life but previous and next lives. but वो थ्योरी अभी हमें प्रूव करना है, वो कौन कब करेगा ये तो मुझे नहीं जानता, but that theory is definitely there. but then this universal human value एक बिल्कुल अलग aspect है. Professor Rajneesh Arora was telling me in the morning that it is not about moral values or moral education, but it is about, you know, how to be balanced professionals. Technical skills तो आ जाती हैं, but you know there is so much stress in life. How we manage that stress, how we manage our time. आजकल when there are so many devices and you know like you can go crazy with the information that you have, and how you manage your time, how you manage your relations with others, that is also very important. Interpersonal relations. So stress management, time management, interpersonal relations. So we need to learn all these skills besides technical skills if we want to be successful in our professions. Because ultimately, you know, having skills is important, but then we have to deal with people and we have to maintain a balance in our lives. We have to have a mental balance also, and we have to have a healthy lifestyle also. So, you know, we need to have a lifestyle where we can have time for relaxation of mind. So relaxation of mind is, you know,
is a technique in itself, and it's not, you know, it is easier said than done, because mind is such a thing that you are thinking even while you are sleeping. That's how you get your dreams. So relaxing your mind is very tough, and I mean, we can only teach these things, but whether students learn them or not, whether we also learn them or not, that all depends, you know, how hard we practice to learn these things. So Professor Rajneesh Arora is here with us. He will be talking about this minor degree program that has been developed, and we have to then see how we can, you know, incorporate in our curriculum so that our students can benefit from this. So I hope that these the deliberations that take place will be beneficial for all of us. I welcome Professor Rajneesh Arora again. Thank you everyone for joining today. Thank you, ma'am. Professor Renu Vig has herself been a pioneer for improving the entrepreneurial ecosystem in Punjab University, and she has rightly said that National Education Policy 2020 stresses upon harnessing the complete human potential, which requires a fundamental foundation of human values. However, though a part of the new education policy, but value-based education system has been a part of our education system since long. Like long back, you know, ages ago, it has been quoted, Yesham na vidya, na tapo na dan, na jnanam, na shilam, na guno, na dharma, te mritya loke bhuvi bhar bhute, manushya rupen mrigash charanti. अर्थात वे लोग जो ज्ञान गुण शील के विहीन हैं, वे लोग इस धरती पर भाव स्वरूप हैं एवं मनुष्य के रूप में पशु की भांति विचरण करते हैं. So what is required is a formal and a seamless integration of this value-based education system in our academics. So to show us the path, we have with us Dr. Rajneesh Arora, who is as much an authority on this subject as he's passionate about it. As I've already stated that Dr. Rajneesh Arora is the chairman of the National Coordination Committee for Induction Program, AICT, but there's much more to him. Dr. Rajneesh Arora is an extremely remarkable person with a firm resolve to serve the nation. Normally IITians, you know, they have this kind of a reputation that they seek greener pastures abroad. But this alumnus of IIT Delhi has been working, has given 13 years of his life to work for social reforms with the tribals of Jharkhand, even in those villages which were without electricity. He has been the Vice Chancellor of Punjab Technical University. Currently, he's the Managing Director of Amritsar Group of Colleges at Amritsar. He also holds the responsibility of Punjab's Seh Sangh Chalak of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh. I'm sure we are all eager to listen to him. So ladies and gentlemen, I present to you the speaker for the day, Dr. Rajneesh Arora. बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, निशा जी. हालांकि मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा, लेकिन दुनिया में भारत में भी जहाँ कहीं पर भी बात होती थी तो वो हमको पंजाब यूनिवर्सिटी का ही समझते थे, वो पीटीयू को पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा समझते थे. इसलिए पंजाब ब्रांड जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी दुनिया में बड़ा ब्रांड बनाया है, उसका फ़ायदा हमको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काफ़ी मिलता रहा है, और आज आप सब लोगों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिल रहा है. इसके लिए मैं रेणु जी का बहुत ही आभारी हूँ. पिछली बार मनु जी ने यूआईटी के स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया था, तो तभी मैंने कहा था कि कभी मौका मिलेगा तो ये बात टीचर्स के साथ करना ज़्यादा उपयोगी रहेगा. इसलिए आज के इस कार्यक्रम में टीचर्स के साथ ही इंटरेक्शन का विचार बनाया था. आप में से कोई ऐसे हों जिनको हिंदी समझने में कुछ कठिनाई हो तो मैं आई कैन बी बाइलिंगुअल, अदरवाइज ठीक है. जब पहले मेरे पास पोस्टर आया तो उसमें लिखा था कि ही विल स्पीक ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़.
सो आई सेड नहीं, इसको चेंज कर दीजिए, आई स्पेसिफिकली स्पीक ऑन माइनर डिग्री ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, कि हमारे एकेडमिक्स में इसकी क्या आवश्यकता है और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कैसी संभावना बनी है। और क्योंकि देश में यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस हैं और यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल्स जब इसको चाहेंगे तो तभी ये आगे इम्प्लीमेंट हो सकेगा और तभी इसका फ़ायदा विद्यार्थियों को मिल सकेगा। उसी हेतु से कि हालांकि मॉडल करिकुलम AICTE ने बनाया है, UGC भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, पंजाब यूनिवर्सिटी के कंसर्न कमेटीज़ इसको डेलिब्रेट करें और इसके बारे में अगर हो सके, बल्कि हो सके क्या, कोई मुश्किल नहीं है, 2024 में जो एडमिशन्स हों तो उसमें विद्यार्थियों को इसका मौका मिल सके। ये मेरा आज का यहाँ आने का पर्पस है। हम सब लोग जानते हैं कि एज टीचर्स हम सबके सामने ये प्रश्न रहते हैं कि किस तरीके के ग्रेजुएट्स हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से निकल करके सोसाइटी में जाएं। हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसे ग्रेजुएट्स बनाने के लिए किस प्रकार की एजुकेशन चाहिए, और ये जो नई चर्चा शुरू हुई है माइनर डिग्री की, ये क्या है, और अपनी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, इसी पर मैं अपनी आज की बातचीत का फोकस रखूँगा। एक बार मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लूँगा और आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप नोट कर सकते हैं, बाद में उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग जानते हैं, सब लोग चर्चा करते हैं कि ये बात होती है कि बहुत स्किल्ड ग्रेजुएट्स चाहिए और हर फील्ड में चाहिए, वो आर्ट्स में भी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मा, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हर डिसिप्लिन में ऐसी स्किल्स हों कि हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल हो जाएं। और इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हर एक जगह पर ये रहता है कि उनका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्किल्स ये ऐसा हो कि वो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री रेडी हो, और उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स पिछले सालों में होते रहे हैं, तरह तरह की एक्रेडिटेशन, तरह तरह की रैंकिंग्स, वाशिंगटन अकॉर्ड और ये एथिक्स वो एथिक्स, और फिर तरह तरह के नए कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क, ये सब चीज़ें चलती रही हैं और आप सब लोग उसके पार्ट हैं, पार्ट रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी बार बार मन में आता है कि सिर्फ हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट्स चाहिए या अच्छे ह्यूमन बीइंग्स भी चाहिए। मैं कई बार अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर प्लेसमेंट था तो उस समय पर कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती थी, और जब रिजल्ट आता था तो ध्यान में आता था कि हमारे टॉपर्स रह जाते थे, जिनके मार्क्स 85%, 90% होते थे, वो रह जाते थे, और 65%, 70% वाले ज़्यादा जॉब्स ले जाते थे। तो मैं कंपनी वालों से पूछता था कि क्या है, हमने तो बड़े टॉपर्स जैसे बढ़िया। बोले नहीं, हमको टॉपर्स हमारे काम नहीं आते, हमको ऑल राउंडेड पर्सनैलिटीज़ चाहिए। हमें सिर्फ उस तरीके की टेक्निकल स्किल्स ही नहीं चाहिए, स्किल्स तो हम भी पढ़ा लेंगे, और आपका सिलेबस कितना भी ज़्यादा अपडेटेड हो, आप इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं कर पाते, आप जो पढ़ाते हैं वो तो ऑब्सोलीट हो जाता है। लेकिन जैसा टीम बिहेवियर चाहिए, जैसा एटीट्यूड चाहिए, जिस तरीके से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, जैसा क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उस चीज़ की कमी लगती है, और वो चीज़ जनरली आपके टॉपर्स में नहीं होती। तो ऐसी बातों को भी ध्यान में रखते हुए, और कुछ चीज़ें अपने दिमाग में भी चल रही थी, सबसे पहले मैं इस कंटेंट के साथ मेरा जो जान पहचान हुई 83 में, जब मैंने IIT दिल्ली से PhD करना शुरू किया, तो मेरे प्री PhD कोर्स में एक कोर्स ऑफर हुआ था, साइंस एंड ह्यूमनिज्म। प्रोफेसर RR गौड़ IIT दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, दो प्रोफेसर थे वहाँ, प्रोफेसर PL धर और RR गौड़। उन्होंने इस विषय पर काफ़ी काम किया।
जो मैं थोड़ा बहुत कंटेंट आपके सामने रखूँगा वो ज़्यादा कंटेंट उनके इनिशिएटिव से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रखा गया। आईआईटी दिल्ली में नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग ऐसा करके खड़ा हुआ। 2010 में वाइस चांसलर के नाते मुझे आईआईटी दिल्ली के बोर्ड पर रहने का मौका मिला। तो मैं जब वहाँ हर बोर्ड मीटिंग में किसी न किसी डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन होती थी, तो एक बार इस वैल्यू एजुकेशन सेंटर की प्रेजेंटेशन थी, तब मुझे पता लगा कि ये कोर्स अपने आप में एक पूरा 3 क्रेडिट का 1 सेमेस्टर कोर्स डेवलप हो चुका है, जिसकी टेक्स्ट बुक है, जिसका टीचर मैनुअल है, जिसके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैंने उसी टाइम वहीं बैठे बैठे ही अपने यहाँ फ़ोन किया लाइब्रेरियन को। मैंने कहा कि 500 किताबें मंगवा लो पब्लिशर से और ये सारे कॉलेज प्रिंसिपल्स को भेज दो और हम इसी साल 2010 एकेडमिक ईयर से शुरू करेंगे और हम एकेडमिक काउंसिल से पास करवा देंगे। ऐसा वो प्रेजेंटेशन सुन के ही तो मुझे फिर प्रोफेसर आर गौड़ और प्रोफेसर राजीव संगल जो बाद में आईआईटी वाराणसी के डायरेक्टर बने, उन्होंने मुझे कहा प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं लागू होगा, पहले आपको खुद ये कंटेंट समझना पड़ेगा। आप खुद 8 दिन की वर्कशॉप कीजिए और फिर समझिए, फिर आपको ठीक लगे तो इसको लागू कर पाएंगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ये किताबी कोर्स नहीं है, ये तो लाइफ चेंजिंग कोर्स है। तो मैं अपने साथ अपने 23 टीचर्स और ऑफिसर्स के साथ आईआईटी कानपुर में अक्टूबर 2010 में गया। वहाँ 8 दिन ये रेजिडेंशियल कोर्स को समझा और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर से 2011 से जब शुरू किया तो ये चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ी। 2017 में एआईसीटी ने अपने मॉडल करिकुलम में इसको मैंडेटरी कोर्स के तौर पर किया, जिसके कारण से पूरे देश के 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये कोर्स मैंडेटरी है। और अब प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे के इनिशिएटिव से जब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बना प्रोविज़न की माइनर डिग्री दी जा सकती है, तो 42 डिसिप्लिन्स एआईसीटी ने अपने वेबसाइट पर डाले हैं कि आप कोई भी कोर्स कीजिए, 4 ईयर डिग्री कोर्स कीजिए और उसके साथ अगर 18 से 20 क्रेडिट आप किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के करते हैं तो आपको एक माइनर डिग्री भी दी जाएगी। तो उसके हिसाब से 8 कोर्सेज अलग अलग डेवलप किए गए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो 3-3 क्रेडिट के कोर्स हैं। पहला कोर्स जो है फाउंडेशन कोर्स है वो मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद के इलेक्टिव कोर्सेज हैं जिसमें से स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स कर सकते हैं और अगर वो 20 क्रेडिट्स पूरे करते हैं तो उनको माइनर डिग्री मिलेगी। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें यह है कि हम लोग स्किल ग्रेजुएट्स चाहते हैं एक ह्यूमन वर्ल्ड व्यू के साथ, और ऐसे ग्रेजुएट्स हर डिसिप्लिन में चाहिए। इंजीनियरिंग में भी चाहिए, मेडिसिन में भी चाहिए, लॉ में भी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, सोशल साइंसेज में भी चाहिए, कॉमर्स में भी चाहिए, जिसमें हमने ये 6 कॉमन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्रपोज किए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना जो समर्थ करके उनका डॉक्यूमेंट है उसमें इनको इंक्लूड किया है। वो है होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ। लाइफ को सिर्फ आइसोलेशन में देखना, सिर्फ सैलरी पैकेज के साथ जोड़ना, सिर्फ अपना इंडिविजुअल कैरियर के साथ जोड़ना, इससे अपनी ज़िंदगी भी सुखी नहीं होती है, अपनी फैमिली लाइफ भी सुखी नहीं होती है, अपनी वर्क प्लेस की लाइफ भी सुखी नहीं होती है। सोसाइटी और नेचर के साथ भी जो इंटरेक्शन है वो तभी सुखी होती है जब आप होलिस्टिक वे में चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। अगर हमारे ग्रेजुएट्स की विजन होलिस्टिक नहीं है, आज नहीं तो कल ज़िंदगी में न किसी मोड़ पर वो बेचारे ज़रूर फंसेंगे। घर में फंसेंगे, बाज़ार में फंसेंगे, बाहर फंसेंगे, नहीं तो फिर ग्लोबल वार्मिंग में फंसेंगे, क्लाइमेट चेंज में फंसेंगे। सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इट स्टार्ट फ्रॉम फैमिली इटसेल्फ। अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने स्पाउस के साथ। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वर्क, कैसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना, जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं उसमें जिस तरीके का क्लाइमेट पर और एनवायरनमेंट फ़र्क पड़ रहा है वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, बेसिक एथिक्स जो मुझे समझ में आनी चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आज बेईमान से बेईमान आदमी भी जो है वो नौकर ईमानदार चाहता है, भले कहेगा कि सारी दुनिया बेईमानी से चलती है, बेईमानी के बिना नहीं चलता है, लेकिन उसको अपना नौकर
ईमानदारी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फंस जाएगा। हैविंग कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड हाइजीन। सब पढ़ाई कर लेंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ नहीं संभाल सकते। पता लग रहा है कि ये खाना, ये सोना, ये ऐसे जीना, ये अपनी हेल्थ के लिए, किसी और का नुकसान नहीं होता है। तो ये तो हर ग्रेजुएट के लिए ज़रूरी है। एप्रिसिएशन एंड एस्पायरेशन फॉर एक्सेलेंस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल। फर्स्ट आना ये हम सिखाते हैं, लेकिन सबको एक्सेलेंस में बढ़ना है, इसके बारे में कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है। इसको हमने कहा है कि दिस इज वैल्यू कॉम्पिटेंस। और हम अपने अंदर सोचें कि ये वाले एट्रीब्यूट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लोग कहते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। लोग कि भी अगर टीचर को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए तो करेंगे, अगर बच्चों को लाइफ में इनका कुछ फ़ायदा लगता है तो करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं होगा, उसमें कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। इफ़ यू फील दैट वी नीड दीज एट्रीब्यूट्स, देन डू वी नीड टू मेक एफर्ट्स फॉर इट। तो बिना कुछ किए अपने आप हो जाएगा तो अभी तक तो नहीं हो पाया। उस डायरेक्शन में अपने को काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि ग्रेजुएट्स ऐसे चाहिए, तो सोशल लेवल पर भी हम सबकी एस्पायरेशंस हैं। हम सबकी एस्पायरेशंस हैं कि एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो डेवलप हों, जो म्यूचुअली प्रॉस्पेरिटी, जिस तरीके के आपस का रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ रहा है, इसको भी एड्रेस करना होगा। ये हम सब चाहते हैं सोशल लेवल पर। सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियरल स्किल्स, टीम वर्क, कोलैबोरेशन। मैं कल्ला काम कर लांगा, बस तुम मैनू काम दे दो मैडम, मैं ले आवांगा करके, ऐसे नाल ना दियो, इतना खराब कर देगा। मतलब जो टीम वर्क ना कर सकन दी गल है, वो सोशली सानू कितना प्रॉब्लम कर रही है। स्किल्स फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन फैमिली, नेबरहुड, इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेस, कम्युनिटी एटसेट्रा एंड ऑल द वे टू द नेशन एंड बियॉन्ड। बाकी दुनिया के नाल भी ऐसी रल मिल के रह सकी है। ओरिएंटेशन एंड स्किल्स फॉर सर्विस विच प्रमोट्स हारमोनी इन फैमिली, सोसाइटी एट ऑल लेवल्स। पेरेंट्स की सेवा करनी है, बच्चों की करनी है, घर में कोई बीमार है, पड़ोस में है, ये जो सारे भाव हैं इनको समझना पड़ेगा। ये फीलिंग्स हैं क्या? ये सिर्फ उपदेश से नहीं आएगा, सिर्फ क्योंकि उपदेश तो हम लोग देते ही रहते हैं, घर में भी देते हैं, बाकी भी देते हैं। डू वी हैव प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स विद दीज स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज, और आर वी फेसिंग इट? आवाज की तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं क्या, पढ़ाने वालों को दिक्कत नहीं होती है, मास्टरों को आवाज की दिक्कत नहीं होती है। और वी फेसिंग ए लैक ऑफ सच ग्रेजुएट्स। शुड अवर एजुकेशन प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स विद दीज स्किल्स आल्सो? ये हम सब लोगों के लिए सवाल है। तो द कॉमन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स रिलेट टू वैल्यू कॉम्पिटेंस, and the skill specific or stream specific graduate attributes relate to proficiency in skills. We want to produce graduates with value competence and proficiency in skills. आज दोनों में गैप हो सकता है, लेकिन मेजर गैप किस में है? मेजर गैप स्किल्स प्रोफिशिएंसी में है कि वैल्यू कॉम्पिटेंसी में? वैल्यू कॉम्पिटेंस में है। मेजर गैप कहाँ है, कहाँ कमी कहाँ नजर आती है? अब थोड़ा सा भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मेजर गैप वैल्यू कॉम्पिटेंस में है। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप खुद सोच सकते हैं। और बहुत सारी बातें कंट्री में होती रही हैं, होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, और एनईपी में भी ये सब बातें कही गई हैं। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स और बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। पहली लाइन पहले पेज पर, पहले पैराग्राफ में ये लिखा है एनईपी में, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग 3 थिंग्स: फुल ह्यूमन पोटेंशियल, नंबर 2 डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। बड़े बड़े वर्ड्स हैं। फिर बीच बीच में कहीं लिखा है रूटेड इन इंडियन इथोस, कहीं लिखा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कहीं लिखा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ग्लोबल वेलबींग। तो हम सब जानते हैं कि वर्ड्स लिखने से डॉक्यूमेंट में और सेंटेंसेस में उससे रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट तो उसके आगे कुछ करने से आते हैं। और इसके बारे में ये कहा गया कि
जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करेंगे और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करेंगे, और ये बात कही गई कि उनमें सब तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मॉरल, इन इंटीग्रेटेड मैनर, सच एंड एजुकेशन विल। तो इस सारे के लिए उन्होंने तरीका बताया कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो हम सब लोग तो ग्राउंड पर क्लास लेते हैं और हम सब लोग यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको पता है कि सिर्फ कोर्स जोड़ देने से और ये कर देने से मामला आगे बढ़ता नहीं है। डज नॉट मेयरली मीन पुटिंग टुगेदर द फ्रेगमेंटेड पीसेज ऑफ नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स विदाउट एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेटिंग the underlying comprehensive, unified and complete understanding of the existential reality at its base. ये जो होलिस्टिक की बात हो रही है, इट्स नॉट ए मिक्सचर काइंड ऑफ थिंग। जो साइंस के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री वाले, तो जो वो मिक्सचर और कंपाउंड की बात होती है, तो ये इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उससे काम नहीं बनने वाला है। आपको एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा। we live at 4 dimensions. One is doing, thinking, feeling and understanding. ये चारों अगर अलाइंड हैं तब तो फर्क पड़ेगा। ज़्यादातर जो घरों में वैल्यू एजुकेशन होती है वो डूज एंड डोंट्स पर होती है, वो डूइंग पर होती है। ऐसे नमस्ते करो, गेस्ट आए तो पाँव छुओ, बड़ों का ये करो, वो करो, करो करो पर बात होती है। और उससे ज़्यादा जब स्कूल कॉलेज में 7वीं 8वीं में मॉरल एजुकेशन होती है, वो बात जो है वो बिलीव करो, बड़ों का ये करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये बिलीव्स पर है। ये इसलिए मानो क्योंकि फलां किताब में लिखा है, रामायण में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, फलां महापुरुष ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है। नहीं, हमको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी जो थिंकिंग और डूइंग है वो हमारी फीलिंग और बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो उस लेवल पर हम चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमें वो होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात नहीं आएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए AICT ने जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि नहीं, डू वी नीड टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड, हार्मोनियस एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग एग्जिस्टेंशियल रियलिटी थ्रू आवर एजुकेशन। एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ हाउ टू फुलफिल दीज नीड्स एंड लिव विद फुलफिलमेंट। आदमी की क्या क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, और उन ज़रूरतों को पूरा करके आदमी कुछ फुलफिलमेंट की फीलिंग ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आज चल रहे हैं कि कैसे ना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए और वो कैसे भी कमा लिया जाए, तो क्या उससे मामला कहीं पहुंचेगा ठीक जगह? तो बड़े आसानी से, थोड़ा सा भी उसके लिए कोई किताब पढ़ने की, कोई उपनिषद, वेद, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही समझ में आता है। इस तरीके से चलने से मामला ठीक जगह पहुंचने वाला नहीं है। तो ये एक डॉक्यूमेंट AICT के वेबसाइट पर है जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की है। इस छोटे से सेशन में ये काम नहीं हो सकता है, जिसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है एजुकेशन ऑन वैल्यूज फाउंडेड ऑन ए होलिस्टिक एंड ह्यूमेन वर्ल्ड विजन, कि दुनिया को हम देखते किस दृष्टि से हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है। दूसरा है कि उस वर्ल्ड व्यू पर बेस्ड कोर्सेज डिज़ाइन करना, जिसमें तरह तरह की एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, जो लोकल भी हैं, रीजनल भी हैं, नेशनल भी हैं, बाकी दुनिया की भी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, और उससे रिलेटेड स्किल्स टू रीइंफोर्स एंड एग्जाम्पलीफाई ए होलिस्टिक एंड ह्यूमन वर्ल्ड विजन। उसी वर्ल्ड विजन को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, उसी को रीइंफोर्स करने के लिए जो हमें अपने ही सराउंडिंग में, अपने ही नॉलेज सिस्टम में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में वो एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं। और थर्ड है लर्निंग नेचर फ्रेंडली एंड ह्यूमन फ्रेंडली स्किल्स एंड देयर प्रैक्टिस,
इसको AICTE ने इस 3 हिस्सों में इसको आगे बढ़ाने का इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए जो 7-8 कोर्सेज AICTE ने उसका करिकुलम डिज़ाइन किया है और जिसको मिला करके वो बुके ऑफ कोर्सेज जिसमें से स्टूडेंट्स टेकअप कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट से। पहला फाउंडेशन कोर्स जो मेनली ह्यूमन वर्ल्ड विजन पर है वो कंपलसरी कोर्स है और उसके बेसिस पर वो अपनी माइनर डिग्री अर्न कर सकता है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा क्योंकि कई चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है आपके क्वेश्चंस लेने से पहले। ये जो पहला कोर्स है इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हार्मनी। इसमें प्रपोजल ये है कि यूनिवर्स में एक एग्जिस्टेंशियल हार्मनी है। ये सारी दुनिया, ये एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, इट्स इन हार्मनी विद ईच अदर। हार्मनी विद इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी एंड हार्मनी विद नेचर। ये बेसिक प्रपोजल है कि हम इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हैं, हम हार्मनी में हैं। और उस हार्मनी को, और ये जो हार्मनी है ये यूनिवर्सल है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ पंजाब में चंडीगढ़ में नहीं है, ये एशिया में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है। इट्स यूनिवर्सल इन नेचर। इस पूरे कोर्स में जो भी प्रपोजल्स स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती हैं, स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ मानने को नहीं कहा जा रहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो, ये स्वामी दयानंद कह गए हैं इसलिए मानो, ये वेदों में लिखा है इसलिए मानो। नहीं, एज ए टीचर आई एम पुटिंग फॉर द प्रपोजल बिफोर यू and I am saying that these proposals are universal in nature. Now the process is we encourage the students to explore it within themselves. Try to see that there is a faculty within yourself that you can see whether it is naturally acceptable to me or not acceptable to me. So we put more emphasis on natural acceptance of the children, of our students. और उनको कहते हैं कि तुमको अपने अंदर से क्या लगता है कि ये दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में है या हार्मनी में है, और ये सब आप लोग। तो ये चीज़ें यूनिवर्सल 4 गाइडलाइंस हैं इस पूरे कोर्स की, इस प्रपोजल की। दिस प्रपोजल इज अबाउट नेचुरल लॉज ऑन रियलिटी एज इट इज। रियलिटी जैसी है उसके बारे में प्रपोजल है, इन ए वे दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड इट ऑन देयर ओन राइट। गरीब भी, अमीर भी, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी। और उसके लिए बहुत पहले से कोई MA PhD करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ इसलिए हायर एजुकेशन में कर रहे हैं कि हमें बड़ी संख्या में फ्यूचर पेरेंट्स, फ्यूचर टीचर्स और फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स चाहिए। अदरवाइज ये सारी बातें अगर पेरेंट्स को समझ होती, अगर स्कूल टीचर्स को समझ होती, तो ये बच्चा अपने आप अपने फैमिली एनवायरनमेंट में ही समझ जाता है। दीज आर लॉज ऑफ द नेचर एंड दीज लॉज आर रैशनल इन नेचर। वी कैन अंडरस्टैंड दीज लॉज, वी कैन डिस्कस इट इन आवर क्लासेस एंड वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर दीज लॉज विद इन देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड इट ऑन देयर ओन राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी। इसके लिए ये नहीं कि भाई ये मैं बड़ा हूँ, मैं घर का फादर हूँ, मैं मदर हूँ, इसलिए तुमको मानना है। नहीं, जीना है, मज़े से जीना है, ज़िंदगी को का मज़ा लेना है, तो ऐसे ही जीना होगा। ये तुमको भी ठीक लगता है कि नहीं लगता है। एंड दीज आर वेरीफाइएबल आल्सो। अगर नहीं ठीक लगता है तो तुम दूसरे तरीके से जी के देख लो, तुम लड़ाई करके देख लो, तुम कंपटीशन से जी के देख लो। कंपटीशन से अगर ज़िंदगी सुखी होती है तो वैसे कर लो, कॉपरेशन से ज़िंदगी सुखी होती है तो वैसे कर लो। इट्स अप टू यू, इट्स अ चॉइस बिफोर यू। अगर गुस्सा करना तुम्हें ताकत लगती है तो गुस्सा करना ताकत है कि गुस्सा करना वीकनेस है? तो ध्यान में आता है कि जब आप होपलेस हो जाते हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपना वॉल्यूम ही बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आप गुस्सा करते। तो ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के साथ कि वेरीफाइबल एंड इट्स ऑल एनकम्पासिंग। इट डील्स विद योर डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
and it leads to harmony at all levels. Harmony within yourself, harmony with family, within family, harmony in society, and harmony with nature. Because we all live at 4 levels in 4 dimensions. It follows a process of self-verification on the basis of one's natural acceptance, leading to self-confidence and self-evolution. Here, when you accept the things on your own natural acceptance, then you not only move towards discipline, but you move towards self-discipline. Then you don't need discipline from outside. So ये जो it provides a universal basis for human values that supplements and can provide direction to the present educational system. तो ये AICT को इस तरीके का ये कंटेंट लगा. मैंने इसकी फाउंडेशंस के बारे में, ये पिछले 30-40 साल का बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे लोगों के मेहनत का फल है कि वो एक अच्छे एकेडमिक मॉड्यूल के तौर पर ये आज हम आप सब लोगों के सामने रख पा रहे हैं. It encourages students to discover what they consider valuable. जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यूनिवर्सल, रैशनल, वेरीफाइबल, लीडिंग टू हार्मनी एंड ऑल एनकम्पासिंग, उसके बेसिस पर उसको ध्यान में आता है कि मेरी ज़िंदगी में वैल्यूएबल क्या है, मेरी ज़िंदगी में मेरी हेल्थ वैल्यूएबल है कि नहीं है, मेरी ज़िंदगी में फैमिली के साथ ठीक तरीके से रहना, सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ ठीक तरीके से रहना, ये वैल्यूएबल है कि नहीं है, एंड व्हाट आर द सुपरफिशियल थिंग्स इन माय लाइफ. वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है वैल्यूएबल और सुपरफिशियल के बीच में. इट enables the student to discover and understand the innate value of human being in every aspect of life, individual, family, society, nature, reinforce the commitment and courage to live accordingly. जब आदमी खुद अपने अंदर सोचता है कि ये मैं जो इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, यार शराब तो पीनी ही पड़ेगी, कंपनी में रहना है तो दूसरे काम करना है, ये मैं मजबूरी में कर रहा हूँ या मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है. तो मजबूरी में ज़िंदगी जीना ये मुझे एक्सेप्टेबल है कि हिम्मत के साथ, करेज के साथ. तो जब उसको ध्यान में आता है कि असली चीज़ तो ये है, तो उसके अंदर एक करेज और कमिटमेंट पैदा होती है. इट फैसिलिटेट्स डिस्कशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑन लाइफ गोल्स, रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट दे आर एंड व्हाट दे वांट टू बी. आज मैं क्या हूँ और मैं क्या होना चाहता हूँ, इन दोनों में जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए जो टीचर की ओर से हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, वो काम हम सब टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ करना है. उनके अपने मन में है कि वो क्या होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं. मैंने कहा मैं क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं क्या होना चाहते हैं और क्या वो हैं. तो आज वो जिस तरीके की मजबूरी में, प्री कंडीशनिंग में जी रहे हैं, वो जैसा होना चाहते हैं, जो उनकी एस्पायरेशन है, वैसा उनको बना पाने में हम टीचर्स को उनकी हैंड होल्डिंग करनी. relationships in family, relationships with society, relationships with nature and existence. हम में से कोई बच्चा, कोई टीचर, कोई सोसाइटी में कोई भी अपनी लाइफ अपोजिशन में नहीं जीना चाहता है, रिलेशनशिप में जीना चाहता है. तो उस सारी चीज़ को जो चाहते हैं हम, जो हमारी कॉमन चाहत है, उसके बारे में इसमें बात करते हैं. ये माइनर डिग्री का जो मॉडल करिकुलम है, ये भी AICT के वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. The minor degree in UHV will help to develop teachers, parents and policy makers of tomorrow. जो आज आप हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, they are all future parents, future teachers, future policy makers who will have a humane world view along with world-class technical skills and strive to ensure value-based living for themselves as well as the society. इसके बेसिस पर इस ह्यूमन वर्ल्ड व्यू जो बेसिकली ये है कि दिस होल यूनिवर्स इज, दिस एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्स इज इन हार्मनी विद ईच अदर. ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर इन हार्मनी विद ईच अदर. उसके कोर्सेज हैं UHV 1 और 2, मैंने आपको बताया वो फाउंडेशन कोर्स हैं, जो चीज़ें पहले बताई. UHV 3 है जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग, नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली. UHV 4 है विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी विच इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल, जो NEP में एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन पहली लाइन में कही गई है.
UHV 5 है ह्यूमन वैल्यूज इन डिफरेंट फिलोसफीज, दर्शनाज, सिख दर्शन में, इस्लाम दर्शन में, जैन दर्शन में, वैदिक दर्शन में, दुनिया में अलग अलग जगह पर उसी एक सच्चाई को, उसी एक रियलिटी को अलग अलग तरीके से कैसे एक्सप्रेस किया है. दीज आर ऑल डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम रियलिटी. तो वो स्टूडेंट के सामने, जो स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो ह्यूमन वैल्यूज एंड डिफरेंट फिलोसफीज, ह्यूमन साइकोलॉजी लीडिंग टू फुल ह्यूमन पोटेंशियल. फिर है एक कोर्स, ए फाउंडेशन कोर्स इन होलिस्टिक हेल्थ, इट्स फिलोसफी एंड प्रैक्टिस. एक है ह्यूमन सोशियोलॉजी लीडिंग टू जस्टिस एट ऑल लेवल्स. एक है ह्यूमन इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल एंड म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स. इनका सबका डिटेल्ड करिकुलम कंटेंट जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है. These courses may also be offered as open electives in your university, as they are already being offered by Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And these course content is also now they have started putting it up. They have already put up UHV 3 Vinay. It's there on Swayam portal, and others are in the process. The concept of minor degree is discussed in approval process handbook from academic year 2022 issued by AICT. They say that it will carry 18 to 20 credits in addition to credits essential for obtaining undergraduate degree in major discipline, which is 163 credits 4 साल में जो करने होते हैं. UHV courses are to be offered as open electives by the university. Each UHV course for minor degree in 3 credits, and they have started making it available on Swayam by AICT until university faculty is prepared for that purpose. जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के पास अपनी फैकल्टी हो जाएगी तो अपने यहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं. ये उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जो प्री रिक्विजिट है कि 15 सेशंस का एक UHV 1 इंट्रोडक्शन टू UHV, इट्स ए कोर पार्ट ऑफ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम. और UHV 2 कोर्स है 3 क्रेडिट्स कोर्स, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट. ये 1 सेमेस्टर 3 क्रेडिट कोर्स विच इज़ जनरली ऑफर्ड इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. ये स्वयं पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप भी रजिस्टर करके खुद भी कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम बचे इसलिए मैं इसको जल्दी, है ना. आप AICT के पोर्टल पर जाएंगे तो उसमें होम के साथ ये माइनर डिग्रीज, SIP वगैरह ये वाले जगह पर इसके डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. आप अपने वैल्यू एडिड कोर्सेज भी जिस तरीके के मैंने लिस्ट बताया वो आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं. फिर टीचर्स तैयार करने के लिए AICT लगातार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती हैं. आप कभी भी AICT के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसका शेड्यूल मिलेगा आगे आने वाले वर्कशॉप्स का. आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं. तोमर जी के समय पर HRDC में भी एक कोर्स यहाँ 7-8 दिन का हो चुका है. आने वाले दिनों में आप और भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर कर सकते हैं. ऑलरेडी जो पंजाब में ऐसे रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल हैं उनकी सपोर्ट से हम ये कहते हैं, ये जितने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इसमें जितने रिसोर्स पर्सन्स आते हैं वो कोई भी ऑनरेरियम नहीं लेता है. सिर्फ अगर वो दूर से आ रहे हैं तो ट्रैवल एक्सपेंसेस लेंगे और यहाँ आपके यहाँ पर अकोमोडेशन लेंगे. दे नेवर चार्ज एनी ऑनरेरियम फ्रॉम AICT फॉर एनी सच प्रोग्राम. इट इज़ एनकरेजिंग वॉलंटियरिज्म अमंग टीचर्स आल्सो. तो लगभग हमें कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा मदद मिली. तब मंडे मॉर्निंग से लेकर के और फ्राइडे इवनिंग तक 5 दिन का बड़ा रिगरस ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें अटेंडेंस बहुत कंपलसरी होती है, बीच बीच में पोल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, और जनरली क्या एवरेज है 50% लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है. 50-60% ही, क्योंकि वो काफ़ी रिगरस एवेल्यूएशन होती है. नेक्स्ट स्टेप्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी. एक तो ने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने यहाँ पर एक UHV सेल बनाइए, और ताकि और जो यहाँ कुछ कॉलेजेस भी आए हैं, मुझे मिले थे SD कॉलेज के प्रिंसिपल आए हैं और भी एफिलेटेड कॉलेजेस के, तो कॉलेज लेवल पर भी UHV सेल बने और फैकल्टी को तैयार करने के लिए ताकि वो UHV 1 और UHV 2 पढ़ा सकें.
ये जो UHV 1 है ये फर्स्ट ईयर में ऑफ़र होता है, UHV 2 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऑफ़र होता है, और फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स माइनर डिग्री कोर्सेज ऑफ़र होते हैं जो अगर टीचर नहीं है तो स्वयं से भी कर सकते हैं। और AICTE और UHV टीम आपको इस मामले में हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है टू प्रोवाइड यू कोर्स मटेरियल, प्रोसेस, फैसिलिटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फैकल्टी, मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकर सबके लिए। कुछ जो 2009 से 2022 तक काम हुए हैं, जस्ट मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम ये नहीं मानते कि हमने कोई नया काम किया है। दुनिया में शुरू से ही दुनिया भर में लोगों ने कोशिश की है कि इस एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ को समझने की और फिर उसको जीने की, और जीने का जो रास्ता है वो ट्रुथ को जीने का लव और कंपैशन ही है, और इसको समझना होता है, खुद समझना एज एन ह्यूमन बीइंग, और फिर इस सारी नेचर में जो अंडरलाइंग हार्मनी है उसको समझना और उसको जीना, और फिर एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी को डेवलप करने में अपनी कंट्रीब्यूशन करना। और ये सब जो कुछ अपने ही फोर फादर से हम लोगों ने सुना है, सीखा है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिलीज़ में, विद ग्रेटिट्यूड टू ऑल, उसी ट्रेडिशन को हम सब टीचर्स ने नेक्स्ट जनरेशन्स में आगे बढ़ाना है। देयर इज नथिंग न्यू वी आर डूइंग, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल in our tradition, and this effort on universal human values is in continuation with the tradition of self-inquiry. We are not of the tradition of imposing issues. We have a tradition of self-inquiry and self-development for well-being of all. That means towards a human society, drawing upon its universal essence, it is put forth as proposals for self-exploration on one's own right. UHV has been experimented in last 40 years, so with people from all walks of life, youth in higher education, urban, children, families, criminals in jails, politicians, administrators, social workers, NGOs, farmers, आदिवासीज, ये इस कोर्स कंटेंट को सबके साथ ट्राई किया है और सब जगह इसके एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। एक कॉलेज से शुरू करके पिछले 15 सालों में आज 4000 से ज़्यादा कॉलेजेस में एक्टिवली ये चीज़ हो रही है। वी फील दैट इट इज़ ए वर्केबल प्रपोजल with a significant potential. It can be used as a starting point for further developing a universal framework for incorporating values in mainstream education and for value-based living. You are the custodians of education in the nation. We invite you to participate, to explore the content, the process, and draw your own conclusions. It's just a proposal. I'm not sharing my conclusions. I'm just saying, if you also feel like that, you take it forward. In last 40 years, as I said that I was the student in that first course on science and humanism at IIT Delhi. 2001, MHRD established National Resource Centers in Value Education at IIT Delhi, NCRT and IIM Lucknow. 2005, IIIT Hyderabad experimented with a mandatory 2-semester course on universal human values. 2009, UP Technical University scaling up in 550 affiliated colleges. 2010 में पहली टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं तो मुझे टेक्स्ट बुक आपको दिखाने के लिए लानी चाहिए थी। हमने 2011 में PTU में इसको लागू किया था। भूटान में जो उनका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का नेशनल प्रोग्राम है, उसके साथ उनको लगा कि ये काफ़ी रेजोनेट करता है, तो उन्होंने 2012 में अपने वहाँ पर सब यूनिवर्सिटीज़ में इसको लागू किया, सब कॉलेजेस में। 2012 में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2018 में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2017 में जब AICTE ने मॉडल करिकुलम में इसको डाला, तो उसके बाद से 10 स्टेट्स की 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में इट्स नाउ ए कोर पार्ट ऑफ देयर एकेडमिक करिकुलम। ये मॉडल करिकुलम भी पूरा वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैंडेटरी, और ये अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक का ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कॉलेजेस को तभी अप्रूवल मिलती है नेक्स्ट ईयर की जब उनके पास टीचर्स इस कोर्स के लिए भी तैयार होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये स्लाइड दोबारा आ गई है। थैंक यू वेरी मच। मैंने पूछा था मनु जी से कि कितने बजे तक चलना है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो पोस्टर में लिखा है वो 5 बजे तक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो मैंने सफिशिएंट टाइम, क्योंकि
ज़्यादा जो यूज़फुल बात होगी वो डिस्कशन में होगी. So I invite questions from your side, and I think I can take up questions from there. मैडम वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट की है कि मिनिमम 2 टीचर्स की टीम, एक यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर और एक यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेटर, इस पर्पज़ के लिए जो इसको डिटेल्स में स्टडी करके देख के और इसकी डेलिब्रेशंस करके अपने यहाँ पर एकेडमिक काउंसिल में इसको लेकर के जाए. चलिए पहले बाद में तिवारी जी आप माइक है वैसे भी हम पूछें. हाँ जी. सो क्या उसको सेकेंड ईयर में ही किया जा सकता है? बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट पीजी लेवल कोर्सेज तो वो 2 ईयर का प्रोग्राम है और आने वाले साल में 1 साल का ही होने वाला है. तो ये माइनर डिग्री कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? हाँ, 2 साल के पीजी प्रोग्राम में अभी थोड़ा मुश्किल होगी. अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया तो क्योंकि अभी तक जो AICTE UGC माइनर डिग्री का प्रोग्राम कर रही है वो 4 ईयर कोर्स में कर रही है. तो 4 ईयर कोर्स में आपके पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं. तो हर सेमेस्टर में एक एक्स्ट्रा कोर्स बच्चा ले सकता है. तो उसके पास अगर 18-20 क्रेडिट्स भी नहीं होंगे तो उसको माइनर डिग्री देना वो ग्लोबली एकेडमिक सर्कल में एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा. तो इसलिए अभी जो लोग ऐसा करना चाहते हैं पीजी कोर्सेज में उनको वॉलंटरीली विदाउट हैविंग दैट एनी बेनिफिट ऑफ माइनर डिग्री बाद में ये कर सकते हैं वो लोग कि अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा करके. आजकल तो ये कि आप क्रेडिट्स अर्न कीजिए और अपना ABC में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आप उसको अपलोड करिए. तो जब हो जाए तो कंसर्न यूनिवर्सिटी के साथ बात करके उनके जो भी एकेडमिक रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आप एकेडमिक डिग्री की बात कर सकते. अभी तक जो क्लियर नहीं आ रही. हेलो. अभी तक जो AICTE ने मॉडल करिकुलम दिया है माइनर डिग्री का वो 18 मिनिमम क्रेडिट्स के बारे में कहा है. तो लेकिन यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी कैन मेक देयर ओन रेगुलेशंस आल्सो फॉर दैट माइनर डिग्री प्रोग्राम. Because AICTE and UGC they just issue guidelines. The actual thing is taken by the academic councils of the concerned university. नमस्कार सर. अच्छा सर, मेरा सवाल छोटा सा है. जो कोर्सेज ऑफर किए हैं आपने उनमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं उनमें? बिल्कुल ठीक है. ये कोर्स सिर्फ थ्योरेटिकल से हो नहीं सकता है. ये जो पहला फाउंडेशन कोर्स है उसका अगर टीचर मैनुअल और टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें 3 क्रेडिट का इसलिए है कि 2 घंटे के लेक्चर क्लासेस हैं, 2 लेक्चर क्लासेस हैं और 2 पीरियड ट्यूटोरियल के हैं जिसमें प्रैक्टिस सेशंस हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक में और टीचर मैनुअल में दिए गए हैं. बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि जो कुछ वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से अपने खुद के डे टू डे लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने नेबरहुड में उसको करके देखें और उस तरीके की असाइनमेंट्स उनको दी जाती हैं. इट्स प्योरली ए प्रैक्टिकल काइंड ऑफ. So my suggestion was when I started a course microbial biotechnology in 2008. So what I tried is my students, so I would take them to like blind school, old age home, even PGI. Though I couldn't have it on regular basis, but that was my desire कि बच्चों को जो आप कह रहे हैं sir. So I tried a little bit on that. So if these students like who opt for these, if they are taken to these places, I think then the real impact would be there. You are very right. Thank you, sir. Thank you for mentioning it. Yes, it is the part of that course. So in different modules,
specifically when there is a module on relationship with society, the students are encouraged to participate in such voluntary activities or to such blind school or such places there. In Punjab Technical University, we established an International Resource Center for Value Education. 2014 में वहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और स्पेसिफिकली फोकस किया था डेलीगेट्स सार्क कंट्रीज से. उसमें पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटीज से 4 वाइस चांसलर्स, 1 डीन और 1 रजिस्ट्रार आए थे, 6 अलग अलग यूनिवर्सिटीज से. बांग्लादेश से भी थे, नेपाल से भी थे, भूटान से भी थे, श्रीलंका से नहीं आ पाए थे, अफगानिस्तान से नहीं आ पाए. उस समय पर जिस तरीके से उन 3 दिनों में डेलीगेट्स के सामने ये कंटेंट और ये प्रोसेस रखी गई, तो पाकिस्तान से आए हुए, ये बात 2014 फरवरी की है, आए डेलीगेट्स ने कहा कि हम इसको एज इट इज अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज में लागू कर सकते हैं, क्या आप हमको टीचर्स डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे. तो हमने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे. तब तक हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था, तो हम शायद और अच्छे से कर पाते. उन्होंने उसके बाद भी अपने फैकल्टी मेंबर्स टंगोरी में 2014 मई में 2 टीचर्स को भेजा था ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. उसके बाद हमने ऑनलाइन एक कोर्स किया था लाहौर यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ, लेकिन फिर उसके बाद आने जाने में वीज़ा वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई और ये गैप हुआ. इस कोर्स का कंटेंट और इस कोर्स की डिलीवरी वो इस तरीके से है कि हमने अपने देश में और दूसरे देशों में इसको ट्राई किया है. इसको आगे बढ़ाने में मुश्किल नहीं होती. ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ. नमस्कार सर. हाँ जी. Sir, thank you for sharing this futuristic, ubiquitous, and this holistic document, strengthening the Indian knowledge system and Indian values. I have seen whole document and syllabus. मैं प्रिंसिपल हूँ नॉन AICTE अप्रूव्ड कॉलेज गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज. कोर्सेज जो नॉन AICTE एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं. And it is affiliated to Punjab Of course, University. this is Govindgarh Public College. My name is Neena Seth Pachni. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप वैल्यू कॉम्पिटेंस गैप की बात हम कर रहे हैं वो हर लेवल पे ही अवेलेबल है और एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन हर लेवल पे अलग अलग है. मैंने ये एक 7 days का ह्यूमन वैल्यू का कोर्स PTU से लॉन्ग टाइम बैक मैंने भी किया था. दैट वाज द रेजिडेंशियल. तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या HRDC की कोलैबोरेशन में या अर्पित के थ्रू टीचर्स के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, क्या ये उन बच्चों के लिए जो नॉन AICTE टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज में हैं, क्या वो भी ये माइनर डिग्री ले सकते हैं ऑनलाइन? थैंक यू. बिल्कुल, ये इसी पर्पज़ के लिए आज का ये सेशन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक फ्रेटर्निटी के सामने ये प्रपोजल रख रहे हैं. इस काम को कॉलेज में करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल को अपने रेगुलेशंस में इस चीज़ को अडॉप्ट करना होगा और फिर किया जा सकता है. HRDC की तरफ से जो अलग अलग तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में कहा गया है उसमें पहले से ही ये है और ऑलरेडी यहाँ एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कोर्स हो चुका है जब तोमर जी HRDC डायरेक्टर थे और आगे भी हो सकते हैं. और अगर आप अपने कॉलेज के इनिशिएटिव से अपने कॉलेज में भी इस तरीके का प्रोग्राम करना चाहेंगे तो AICTE आपके वेन्यू पर भी करने के लिए उसको UHV के रिसोर्स पर्सन्स को भेज सकती है. आपको सिर्फ जगह देनी है और प्रोग्राम हो जाएगा. तो इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना होगा. तो इसी पर्पज़ के लिए कि इसी एकेडमिक सेशन से ये हो सके, इसीलिए आज का सेशन है और ये वाकई ज़रूरत है ऐसा लगता है. हाँ जी. हाँ बिल्कुल, अगर NSS कोऑर्डिनेटर्स
अपने अपने उसमें इनिशिएटिव लेकर के अपने जो उनके कैंप्स लगते हैं, जैसे ये जो UHV1 है ये 15 सेशंस का मॉड्यूल है, तो ये लगभग 3 वीक्स का जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर, उसमें उसको कवर करते हैं डेली 1.5 घंटे का सेशन। तो आप अपने NSS कैंप्स में भी उसको कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द रिसोर्स पर्सन, दे विल नॉट चार्ज एनी ऑनरेरियम फॉर दैट, so we can do that. Will the students get certificates for completing this course? It is within your own NSS program. You are already issuing so many certificates to them. So yes, AICT will not issue any certificate. Will say that this program. It is, you have to discuss in NSS. Sir, I'm a young faculty member from UILS. We are all young. हम सब young ही हैं. So, I'm a देखिए फैकल्टी मेंबर कभी भी बूढ़ा नहीं होता, हर साल जवानों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए आप सिर्फ आप नहीं क्लेम कर सकते, हम सब यंग हैं. No, sir, I gave that disclaimer because I don't know if my question is appropriate. Yes. Sir, I do want to mention thank you for the very enriching presentation. I feel like we're living in a climate of growing intolerance, politically and otherwise, and I see it at the department also now of the recent things that are happening in Punjab with Amritpal controversy. And so when I teach in class also, because I can't go with a lot of idealism, I feel like there's a sense of commodification of education and students are just becoming factory products. So sir, within law, I teach constitutional law, and within constitutional law, my specialization is part 3, which is fundamental rights. And I feel like your presentation is very closely related with what I teach. Sir, so I just, if you could comment on how the course that you just talked about on human values, it can actually complement legal curriculum. Because I feel like when I'm teaching law also, I try to emphasize on the underlying jurisprudential legal philosophy of why, say, free speech or right to life is important. Kids are not interested in that. They're just like, हमें बाहर ये काम आएगा कि नहीं. बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि खास करके जो आज सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात होती है और जो आज सारी जो लीगल एजुकेशन है उसके साथ बिल्कुल सीधा सीधा ये कॉम्प्लीमेंट्री है. और उस हिसाब से मैडम रेनू आज मॉर्निंग में कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में हम सोच रहे हैं कि वैल्यू एडिड कोर्सेज जो UGC की तरफ से है वो एक पूरा बुके हो इलेक्टिव कोर्सेज का, और फिर आप एनकरेज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि उसमें से लेकर के, तो वो उनका जो डिग्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें जितने क्रेडिट्स उन वैल्यू एडिड कोर्सेज से लेने हैं उसमें आप ले सकते हैं. और मेरा सजेशन ये हुआ कि आप खुद और आपके कुछ टीचर फ्रेंड्स को मिलकर के पहले एक बार पूरा कोर्स कंटेंट को देखेंगे, समझेंगे, तो फिर शायद उसका और ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा उसकी यूटिलिटी आपको ध्यान में आए. थैंक यू सर. हाँ जी. सर सबसे पहले धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे बात रखा, और मुझे याद है सर जब 2011-12 में मुझे आपके साथ इस पे कार्य करने का मौका मिला सर. साहब प्रोफेसर साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स के, उसी के ऊपर एक बात शेयर करना था सर कि प्रोग्राम चला हुआ था 8 डेज़ का, डे नाइट इन हाउस. तो एक जेंटलमैन थे, उन्होंने बोला कि इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया. तो काफ़ी हाइपर हुए, सब लोगों ने बड़ा चिंतित थे कि बात क्या हो गई. बाई चांस मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, तब मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था सर. तो हमने उनकी बात पूरे ध्यान से सुनी. हमने कहा कि भाई साहब आप इसको कंक्लूड करो प्लीज़. कहता सर 10 रुपये की सिगरेट बेचने के लिए आप एक ऐड निकालते हो, बच्चा बाइक पे दौड़ता है और आप 2 डबल स्टोरीज को क्रॉस कर देते हो, और फिर हमारा यूथ क्या करता है सर, उसी सिगरेट को पीता है और वो भी उसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स करता है सर. सर मैडम ने भी बोला सर छोटी छोटी चीज़ें थी, और हमने खुद अनुभव किया कि उन चीज़ों के सकारात्मक रिजल्ट आए. मैडम वाइस चांसलर जी बैठे हैं, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने एक सिलेबस डिज़ाइन किया मैम, उसमें हमने एक पेपर एडवाइस किया कि ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का एक पेपर एक सेमेस्टर के लिए डाल लिया जाए. तो उसमें एक आवाज़ आई कि इससे तो हमारे टीचर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा. मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ये एक ऐसा पेपर है जिसको कोई भी सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा सकता है, और दिल से अगर 8 डेज़ का वर्कशॉप कोई भी लगाता है
तो मैं ये नहीं कहता कि 8 डेज से उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, परंतु हाँ उसमें परिवर्तन जरूर आता है। सर हमारे साथ एक कार्य प्रोफेसर साहब थे, वो आए, वो चले गए, अगले कार्यक्रम में फिर से आ गए सर, वो 2 दिन के गैप पे। तो डॉक्टर केसी शर्मा जी से हमने पूछा कि सर आप तो अभी लगाया था, आपको क्या हुआ? कहते कि मैं जब घर गया तो मैं जाते टाइम एक बुके परचेज कर लिया और मैंने अपनी धर्मपत्नी को दिया। तो मुझे कहती कि शर्मा जी आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या? तो मैंने कहा नहीं, सूरज तो वहीं से निकला था, परंतु मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि हम 2 ही घर में लोग रहते हैं, आप टीवी देखते रहते हैं, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, परंतु दोनों अलग अलग रूम में बैठ के करते हैं, तो क्यों ना हम इकट्ठे बैठें। तो एक पॉजिटिविटी के साथ जब काम किया जाता है, शुरू में उसमें समस्या आई परंतु बाद में वो सब सॉल्व होती चली गई। और मेरा अनुग्रह रहेगा कि माननीय संजय कौशिक सर भी बैठे हैं कि सभी कॉलेज जैसे ही सेल को एस्टेब्लिश करें तो सिर्फ एस्टेब्लिश करना उसका पर्पज़ ना हो, उसमें एक कार्य प्रारंभ किया जाए। और जैसे जैसे उसमें सर ने बोला कि 2 ट्यूटोरियल हैं, प्रैक्टिकल एक्सेप्ट जोड़ेंगे, बहुत सारी गतिविधियां जुड़ जाती हैं और एनएसएस वाले जुड़ते हैं, एनसीसी वाले जुड़ते हैं, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर दिल से आपका सादर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं इसमें इतनी बात, ये तो हम लोग नहीं गारंटी देते कि 8 दिन के कोर्स करने से कुछ बदल जाता है, लेकिन इतना ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से कहते हो कि बदल होना शुरू हो जाता है, वो एक तरफ ध्यान जाता है बदल की तरफ, इतना ज़रूर मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, इन्होंने माइक पकड़ा फिर आओ। अच्छा आप हाँ नहीं चलिए चलिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हो रही है तो उसमें भारतीय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी उपेक्षा करके हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहाँ तक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे वेदों में दिया है या मनुस्मृति में जैसे धर्म के 10 लक्षण में बताए, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो इसमें तो धर्म या आध्यात्म पूजा पाठ कहीं नहीं आती है, ये तो एकदम प्रैक्टिकल है। दूसरी चीज़ और सर, एक मैं आर्टिकल पढ़ा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, गुप्ता जी, कोई नाम उनका नहीं आ रहा है हमें स्मरण, उन्होंने उनकी एक आर्टिकल भी है, उसमें लिखा था कि जो ये क्रुएलिटी से स्लॉटर होता है काउज की, तो उसमें जो सौरोफुल रेडिएशन निकलता है तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है। और कई कई चीज़ें सर हैं। तो मेरा सर प्रश्न ये है कि इसमें कोई भी पॉलिसी हम बनाते हैं तो हम विदेशों में जो प्रचलित परंपराएं हैं या नए नए थ्योरीज हैं उसको हम एडॉप्ट करते हैं, अपनी संस्कृति की उपेक्षा हम क्यों करते हैं? जैसे मैडम ने लॉ के बारे में ही कहा, तो हमारे न्याय शास्त्र में एक लाइन में पूरे न्याय को परिभाषित किया गया है कि प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, और सारा न्याय इसी पर टिका हुआ है। तो ये सर नई जो पॉलिसी बनती है उसमें हमारी संस्कृति की उपेक्षा क्यों की जा रही है, ये मेरा प्रश्न है सर। इस बात पर मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जितना मैंने भारतीय संस्कृति को पढ़ने की, समझने की कोशिश की है, मुझे अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी कि जो यूनिवर्सल ना हो, जो सब पर लागू ना हो। तो इसलिए अगर मेरी संस्कृति यूनिवर्सल संस्कृति है तो मैं उसको यूनिवर्सल ही कहना चाहूँगा। दूसरी बात कि ये कहना कि ये मेरी ऐसी है और तुम्हारी वैसी है, उसकी बजाय जो सच्चाई जैसी है वैसा उसको कहा जाए। तो सच्चाई जब दिखाई देती है तो मुझे भी दिखाई देगी, उसको भी दिखाई देगी। सिर्फ है कि सच्चाई को पूरा देखना, होलिस्टिकली देखने से, वो चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो, तब वो पूरी दिखाई देती है, तब वो पूरी एक ही दिखाई देती, एक ही होती। तीसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस एंड देयर इज अंडरलाइंग हार्मनी in every unit of the universe, it is very much against those so-called theories, which I don't say that they are theories, they have failed for the well-being of those who say struggle for survival of the fittest.
जिसकी वजह से ये सब कंपटीशन और सब, उनको गाली देने की बजाय, उनके बारे में बात करने की बजाय हम अपनी बात करें कि हम सच्चाई को पूरी तरीके से कैसे देखते हैं। हम जिसको अपना कहते हैं वो पूरी सच्चाई यूनिवर्सल है, वो सारी दुनिया के सुख के लिए, उसको हम सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हैं, उसको हम पंजाब में सर्वत्र भला कहते हैं, और इट इज़ फॉर ऑल। और जिनको आज दिखाई दे रही है वो आज उसको मानते हैं, जिनको कल दिखाई देगी वो कल उसको मानेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए एज टीचर्स हम लोगों को, हम अगर हमारे और तुम्हारे में बांटेंगे तो फिर यह वो भारतीय संस्कृति के मुताबिक नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में हमारा और तुम्हारा नहीं है, भारतीय संस्कृति में पूरा एक सच है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सच क्या ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਓਪੋਨੈਂਟ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਚਰੱਲਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਚਰੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ 105 ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਓਪੋਨੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚੁੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੱਤਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਚਰੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦਾ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। Hello, thank you Dr. Arora, thank you Dr. Vij and Dr. Kaushik, everybody. I am a student of education, history of education, philosophy of education and curriculum development. I have attended few programs and conducted also and found that those are very useful. But what I feel is that each one of us have reached to a stage, and we will be going from that stage to the higher stage
when we conduct this program. So it is not that, you know, once we conduct this program, we will reach to the final goal. I consider all professionals, which is the goal of the education also, whether they are in science, education, anywhere science, they have to have professional knowledge, professional skill, and professional attitudes. In professional knowledge, when we are talking about what are the basics of foundation of education. Foundation of educations are, which have been initiated in the NEP 2020 also and earlier also, that learning to be, learning to do, learning to live together, learning to learn, learning to be creative, innovative, and entrepreneur and something, and learning to take care of the environment and all that. So these are the fundamental foundation of all curriculum which have been prepared. Now in our education policy, we have all seen that we have a 10 level pyramid. And in 10 level pyramid, we are trying to fulfill all these objectives. So it means from one level to the other level, we are incorporating all the things of the curriculum. So when Punjab University and other people are designing the curriculum, they have not only to see what is the graduate attributes which are required, they have to see what has been acquired by the students at different levels. And based on that, they should try to give input to the children or the youth when they are in the graduate level. If they do that way, then it will be good. Otherwise, what will happen if we give the module as it is and tell them that you have to just do it, it will not have that impact. Rather than tell them, this is the professional development requirement, and if you develop these things, it will be helpful to you, play a role as a professional. Thank you. Thank you, President. I agree with you. Good afternoon. I am Dr. Pramod from one of the DRDO laboratory here. Okay. And we got a mail from Vice Chancellor Ma'am to attend this. So, not only in education system, we are seeing in the professional institutes like R&D institutes and where the human values are required. And down the line, I am seeing the coming students or new generations are lacking those values. So may it will take some time for universities and colleges to really impart those values and then make them ready for the professional life. But presently in R&D institutes like ours and others, we feel that there is a need for this kind of education to even people who are working right now. Because the ethics and related things and in R&D, the manipulations and all those things can be better handled if we can impart this kind of curriculum as a short program or at kind of things. Because all HR departments of the government system especially doesn't look into these aspects. They are not trained even to train in this area. So some attention should be given for these departments that their HR take care of this kind of curriculum into their training aspect of the employee. So that will probably harmonize the society who are working for the government, among the people, among the society. Very So some right. program. I agree with you. And as AICT UHV team, we assure you if any such invitation comes from your organization, your HR department, we are ready to support and we are ready to conduct such workshops 3 days. Sir, good afternoon. I'm Dr. Ranjay Vardhan. I'm from Sociology stream. I was associated with this value education for NEP 2020. I was chairperson of one of the committee from Chandigarh. So since I worked for this, so 2-3 things I would like to say. First thing is that the elder care and the declining family values should be integrated part of the values, this course. Because somewhere we are losing importance to child love, the way China is facing the problem, the Japan is facing, the new generation is not interested in marrying or producing kids. And that's why the population is declining. Therefore, we have to make efforts for including such kind of values. Plus,
more I feel like that somebody was pointing about activity part. So somewhere when students are being given such kind of education or training or workshop, there should be role plays or skits that will make it very interesting and that have a long-lasting effect on their minds and that they can apply for in their later life. Thank you, sir. Thank you very much. I am happy to share with you that out of those 5 modules, one full module is based on our relationship in family, and there we talk about all such issues, relationship with parents, relationship with children and spouse and our brothers and sisters, and there we have such practical exercises also, and when you see the textbook and the practice sessions, you will find all those things are integrated in that module. Sir, here. Yes. Naveen here, sir, from IIT Ropar. Yes, Ravi. Sir, like value education, one is the minor. Other option also, you can have a elective basket, which we generally keep in Ropar, so that the minor degree as well as elective basket, what we give the degree is that they have the basket of these electives. So that is also one of the options, sir. The second thing which I feel and we all feel in IIT that our faculty training, which is even IIT feel that the training of the faculty is needed, and as per the NEP, we should have some training of these faculties, those who join the fresh faculty members. So I think this can be value education should be part of that training, teachers training as well, because we need the trained teacher first to teach the students. So we are opening a training center particularly for IIT and NIT faculties in IIT Ropar, and I hope this will be one of the some of the subject in that training center. Shukriya. Thank you, Professor Ravi. I agree with you, and it must be part of teacher training as well as the students for their development in right direction. So as AICD UHV team, we are ready to support any such initiative. We can send the resource persons, we can provide you all the content and the process of this value education. We have one resource person in IIT Ropar also, Professor Rakesh Maurya. Yes, right. Exactly. Good. Excuse me, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone. Yes. I am Dr. Pal Dinesh Kumar from TBRL Terminal Ballistic Research Laboratory. It is a DRDO laboratory, and we are part of the CREEC organization here. Yes, good. And Very as nice. my colleague mentioned, we also take students for projects, 6-month project, BTech, MTech, and even PhD students we take in our research organization. So making these things fast forward. Like I was thinking, we regularly organize CEP through our DHRD in DRDO headquarters. Is it possible that to provide the resource and resource person, if we organize such a CEP, in which our scientists and all, they will get trained, and then they will be also able to contribute and to the students who are doing projects at our place? Yes, sure. We'll be happy to contribute towards that initiative, and we'll provide the resource material as well as the resource persons. So through our HRD, sir, we will write a mail and contact you. You can write to Punjab Technical University also, Sir. or you can write directly to me in AICT also, and Okay. we'll arrange also. Okay, We'll thanks. coordinate for that. Thanks. Thank you. I'm thankful to Punjab University that they have invited all the CKIRC institutions also, so that the things can move fast in other institutions. Good evening, sir. Sir, my simple question is, one, that when we are talking about human, I think equally important is animals. So we need to be somehow compassionate towards animals as well. And the second question is, when we are talking about humans, animals,
I think since coming from the discipline of ancient Indian history, I think we should teach how to value our heritage. That is something which is lacking. The students who come to us, they just don't want to listen about that. I think these two things are very, very important as per my understanding, sir. Very right. Thank you. Both the things, when we talk about compassion towards animals, so in this, the module where we talk about our relationship with nature, so in nature all the three orders, animal order, plant order and the material order, they are studied, understood, and our relationship with them. Animals have major role in our day-to-day life. And the other thing you mentioned about our heritage, as I mentioned, that one of the attributes is the gratitude towards all. So gratitude towards our forefathers. So all these things have come to us from our forefathers. So we all are really proud of our heritage. Good evening, sir. Yes. Extremely thankful for such a nice presentation. I just want to say that if it is possible to have a certificate program along with the minor degree program, I think many of our students would be able to take it also. Yes, it's up to the concerned university or the concerned institution. They can plan for that. For us, for students, it's a 3-credit course with 28 lectures, 28 lectures in 14 weeks. And for teachers, it's a 8-day teachers manual. So the university can issue a certificate. We just provide certificate for teachers, that workshop, 5-day online workshop. Or sir, actually, my question was that along with this, you talked about minor degree program for the entire USB this, and if we can offer a certificate program for the students also along with this, that may also be, I think, maybe taken better by the students in a large number. That's what my purpose. Yes, you're right, and the universities can take it up. We will support, we will provide all the resource material and resource persons for that initially, till you have your own teachers for. So that is a lot of food for thought for all of us today. So truly enriching and enlightening discussion. So I would request Vice Chancellor ma'am to present a token of gratitude to Dr. Rajneesh Arora. I think if Dean Academics is there, if he can assure, he or she can assure that Punjab University will take it up further. Someone from academic leadership. Professor Latika Sharma is with us. She is looking after implementation of NEP 2020 at Punjab University. So she has been conducting various programs for the faculty to create awareness how this is to be done, and is chairing the meetings of faculty members of most of the faculties in Punjab University, as well as deans, for framing the curriculum as well as regulations. And she has been attending meetings at the national level also, and is very enthusiastically involved in creation of baskets for value-added courses, skill enhancement courses. And I am sure today she has another line of thought that these courses can also be added to the basket of value-added courses immediately, I think. So Professor Latika can share her thoughts. Thank you, ma'am, for offering me this platform to throw some light on this. Rajneesh sir, I assure you that when we are framing the structure, curriculum structure for NEP aligned courses, we have undertaken our basic guidelines from UGC approved guidelines of December 2022. Plus, we have the very wide expanse of national curriculum framework, which takes into account assessment of informal, non-formal, and formal education. So
the success of your talk is visible, is palpating in this hall when everyone is thinking how. And the basic premise which is offered in the minor degree UHV program, that is in consonance with what is happening at UGC and AICTE level. So sir, we are already working on it, and yes, there is a very enthusiastic team from comprising people from every discipline who are looking into it. So yes, certainly human values will not only be taught, but they will be caught, as every teacher is a reflective practitioner here, and they are thinking about it. They want to give something better to the next generation, even as they are aware of their own improvement. So self-improvement and improving the curriculum for the next generation is very much on the agenda of Punjab University. Thank you, ma'am. Thank you very much. I would like to inform you that from AICT Resource Center at Punjab Technical University, Dr. Vinay Kehar is here. He can be one of the contact points for Punjab University to get all the academic support from that center. He's in charge of International Resource Center for Value Education at PT. Thank you. So yeah, ma'am, may I request you? Thank you, ma'am. I would request Dr. Latika to propose a formal vote of thanks also. Thank you, Nisha ji. Greetings of the evening to esteemed dignitaries on the dais and off the dais. It is indeed a very great privilege for me to be standing this afternoon to propose a vote of thanks. This entire program has set certain vibrations already in the hall. No matter what we are teaching, where we are teaching, what we have learned in today's interaction is going to be visible in our classrooms. Whatever goes on in the mind of our teacher never remains there. It is immediately transmitted to the students. I'm so happy to see questions coming from every discipline and research institutions who are here. And Professor Rajneesh has assured everyone of his cooperation in terms of strategies, in terms of assessment, in terms of curriculum backup. We are very thankful to you, sir, that today, this afternoon, you spare time to deliver this lecture in this hall and spent an equal amount of time in answering the queries of the enthusiastic teachers, directors, principals, coordinators, chairpersons who are here. Our esteemed fellows are sitting here, sir. So we assure you that we will see to it that our Board of Studies, our academic council will be looking into it. Sir, I would also like to tell that the NEP cell has been constituted in the university, and for the last two and a half years, we have been consistently following what is happening at the national level. And it is very important that the teacher has been made the pivot for implementation of NEP. It is not coming top down, it is with the active involvement of the teachers. And as very rightly pointed out by most of the teachers here, everyone is looking for a guru, a mantra, and that has to come through these common discussions which take place in HRDCs, in SIP, in FIP, in FDPs. And these are the platforms where we share our disciplinary challenges also, and challenges of the classroom also, like pointed out in from Department of Laws. So when we have a multidisciplinary perspective, then we become more life integrated in our teaching also. And a student is looking for a relevance of what he's studying in the classroom in his life. And this is going to come when we are not keeping it only as a separate subject, but when we teachers are trained in this, then when we are reflective practitioners, and then we take it to our classrooms and integrate it in everything that we are teaching. It's not just a standalone degree program. It is something that will be integrative in whatever we are doing. Yes, we have to have workshops for how to assess
there cannot be just another 3-hour program of examination in which 5 questions are given on UHV and then everyone is answering those. So like pointed out by my colleagues here, that whether role play or any other different innovative methods be used, community engagement and volunteerism are so central to having an education which is just equitable and for a humane society. So how do we engage in the society? I think every teacher here at some point or the other, as pointed out by Professor Rupinder also, has taken the students outside the classroom also. So I think the harmony that you are pointing out is already, there is a struggle in each one of us how to harmonize the gaps between the reality, existential reality, and this theoretical knowledge which is going on in the curriculum transaction in the classrooms. So sir, thank you so much for igniting our thoughts in this direction. I'm very thankful to Professor Renu Vigji, our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjay Kaushik ji, our Dean College Development Council, Dr. Yujvendra Pratap Singh ji, Verma ji, who is our registrar, all the people who have spared time from their busy schedules and made it a point to be here this afternoon. I'm so thankful to you for your reflection, for your questions, for your interaction, and the notes that you have taken back in your mind to share with your own colleagues back. I'm very thankful to the computer department for making last-minute arrangements for this webcast. I'm very thankful to all the agencies of the universities which have worked behind the scenes to make this program a success. Most of all, I'm very thankful to CIIP and UIIT staff who have seen to it that everything is conducted meticulously. Thank you so much, Nisha ma'am, for conducting the session too. I think we can rise for the national anthem now. Janagana mana adhinayak jaya he, Bharat bhagya vidhata, Punjab Sindh Gujarat Maratha, Dravida Utkala Vanga, Vindhya Himachal Yamuna Ganga, Uchala Jaladhi Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashish Mange, Gahe Tava Jaya Gatha, Janagana Mangala Dayak Jaya He,